Everyone. Welcome to CSRIS Academy. This is K. Sharma, and today we'll be talking about the lectures, which is the ongoing lectures. We have completed till growing in an economy. Uh, that was from NSO. The second was Prithvi Vigyan Scheme. Third was Indo Crypto Search, and fourth, Supreme Court review judicial functions. Fifth was SELSC appointment. Till here we have completed. Now, in this lecture you will be covering the national conclave on primary agricultural credit societies की PCS किस तरीके से फॉर्मल क्रेडिटिंग में इट विल हेल्प. ठीक है. The seventh one is Viksit Bharat Sankalp Yatra. Here we'll be talking about how the PM is, getting a ground information of the ongoing projects like PM Awas Yojana, PM this it's related to insurance. फिर अलग अलग there are multiple this schemes are there which is being reviewed by the PM to have a basic analysis of ongoing ground realities. The eighth is Aditya L1. L1 में आदित्य L1 में किस तरीके से आदित्य जो हमारा सन के स्फेयर को स्टडी करेगा, बाकी चीज़ों रिलेटेड टू सन जो स्टडी होगी किस तरीके से वो प्लेस्ड है वहाँ पे, व्हाट इज L1 और क्या उसकी बारीकियां हैं. वी विल बी टॉकिंग इन दैट इन डेप्थ इन द आदित्य L1. एंड एट लास्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स कि किस तरीके से कितनी कैटेगरीज में बटा हुआ है, हु आर द रिसेंट अवार्डीज, व्हाट इज द बेसिक टेनेट्स ऑफ द अवार्ड सिस्टम एंड ऑल दैट. And for that we will be talking in depth about these four topics. So before proceeding further, I would like to bring your attention toward this thing that अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, so call this number. ठीक है. इन सर का नाम है चंद्रशेखर सर. ठीक है. और सर गिव्स अ पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम. वहाँ पे इफ़ यू आर इन एनी स्टेज, बीट प्रीलिम्स, बीट मेंस, बीट इंटरव्यू, किसी भी स्टेज में है, टॉक टू हिम, हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. उनसे बात करो, उनसे एक प्रोग्राम बनाओ अपने लिए, एंड ट्राई टू फॉलो द टाइम टेबल, ट्राई बी अक्वेंटेड. इस तरीके से सर विल हेल्प यू अ लॉट. Please do call this number if you are in the need. And before anything further, let's start with the lecture. It was in the news that National PACS, that is this Primary Agricultural Credit Societies mega conclave on primary agricultural credit societies will be hosted by Union Home and Cooperation Minister at Vigyan Bhavan in New Delhi. So NCDC, that is National Cooperative Development Corporation, and the Ministry of Cooperation are working together to organize the mega conclave. Recently, the PACS were granted permission to function as Pradhan Mantri भारतीय जन औषधि केंद्रास. ये गवर्नमेंट का जो जन औषधि, ये हाईली क्वालिटी जेनरिक मेडिकेशन एट कॉस्ट that is 50 to 90% lower than branded medication sold in the open market. You will see बहुत सारे आपके आसपास घर के these जन औषधि केंद्र जो आपका जेनरिक मेडिसिन होता है बहुत कम प्राइसेस पे आपको मिल जाता है. तो इनको PACS और ग्रांटेड परमिशन, उनको PACS को परमिशन मिला है टू फंक्शन एज दिस PMB के JKS यानी एज जन औषधि केंद्रास. Through these kendras, the general public can obtain over 2000 different types of generic medication at reasonable cost, along with approximately 300 surgical supplies. So with help of this initiative, PACS will have more options to expand and diversify their business operations, which will raise the incomes of the millions of small and marginal farmers who work with them. Additionally, it will support the development of new job opportunities in rural areas.
तो ये बेसिकली PACS का फंक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड एवरीथिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट NCDC. It's a statutory corporation in 1963. Statutory मतलब a law made by Parliament. By an act of Parliament, and the Ministry of Cooperation is the nodal ministry. कहाँ? PACS के. PACS का nodal ministry कौन हो गया? Ministry of Cooperation. What is the major functions? Programs for the production, processing, marketing, storage, import of food items, agricultural produce, and certain other notified commodities such as fertilizers, pesticides, agricultural machinery, lac, soap, kerosene oil, textiles, rubber are planned, promoted and funded. इसका major function है NCDC का. Consumer goods supply as well as cooperative procurements, processing, marketing, storage and export of small scale forest products in addition to other revenue generating ventures like handicraft, dairy products, fishery, poultry and sericulture. तो ये सारा मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारा फंक्शन है NCDC का. ठीक है. नाउ PACS के बारे में थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं कि PACS. तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दैट इज SCB, एट द स्टेट लेवल आर द हेड of 3-tier cooperative credit structure. नीचे we'll study what is the credit this structure of the cooperative this banking and all that, with PACS serving as the final link at the village level. It's the final link at the village level. The District Central Cooperative Bank DCCBs, which function at the district level, receive credit from the SCBs, yani state cooperative banks. PACS, which deal directly with farmers, collaborates with the DCCBs. मतलब PACS किसके साथ कोलैबोरेट करेगा? DCCBs के साथ. और DCCB को फंडिंग कहाँ से होता है? SCB, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स. PACS offer farmers agricultural loans for a range of farming and agricultural related activities, both short term and medium term. ठीक है. तो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम हो रहा है एक तरीके से. आप वैसे देखो तो फॉर्मल क्रेडिटिंग हो रही है. ठीक है. PACS was founded for the first time in 1905. So it's an old concept. ठीक है. Benefits क्या है? Credit is made available to small farmers through PACS, enabling them to buy fertilizers, seeds, and other farming inputs. As a result, they are able to enhance output and raise revenue. In rural areas with limited access to formal financial services, PACS contribute to greater financial inclusion. They provide farmers who might not have access to official banking services, basic banking services like savings and loan accounts. तो ये एक फॉर्मल क्रेडिटिंग का एक रूप हो गया जिसके कारण द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स विल डिक्रीज. इफ यू सी स्टिल देयर इज सो मच प्रेवलेंसी ऑफ द इनफॉर्मल मार्केट जहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है. फार्मर्स आर बेसिकली एक्सप्लॉयटेड लाइक द कॉलोनियल एरा. सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव फॉर द farmers perspective. So if we talk about the structure of cooperative credit institutions, तो सबसे पहले तो urban cooperative banks है and rural cooperative, NABARD and all that. Then in the rural cooperative bank there is short term structure and there is long term structure. तो short term में state cooperative banks, central cooperative banks and primary PACS, this which we are studying right now. And long term में state cooperative agriculture and rural development banks और primary cooperative agriculture and rural development banks. So these are long term structure and PACS is a part of short term structure. SCBs जो जिनके साथ DCCBs डील करते हैं, it's also a part of the short term. उसका central cooperative banks. तो एक दिमाग में एक फिगर बना के चलना है उस तरीके से. Now let's talk about विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है. तो it's the यात्रा beneficiaries will engage with PM via video conference. News ये है. The event will be attended by thousands of these yatris, beneficiaries from all over the nation, and Modi ji will also give a speech on that. So this was the entire news. So let's talk about the Viksit Bharat Sankalp Yatra. So this yatra is being carried out all over the nation to guarantee that the government's flagship programs, remember that, reach all their intended
बेनिफिशरीज विद इन अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम. इट्स समथिंग लाइक कि सबसे ऊपर का जो लैडर का लोग है, दे आर ट्राइंग टू गेट इन टच कि जो हमने ट्रिपल डाउन इफेक्ट होने के लिए जो बहुत सारी पॉलिसीज बनाई थी, क्या वो हुआ है कि नहीं. इट्स अ गुड इनिशिएटिव. Modi, PM, has been in regular contact with the recipients of the Viksit Bharat Sankalp Yatra across the nation since its inception on November 15 of last year. 2023 के नवंबर 15 में ये चालू हुआ था, and it's a regular contact, reaching out to the public, raising awareness and offering benefits of welfare programs like PM Ujjwala योजना, PM आयुष्मान भारत, PM आवास योजना. ये मेन गोल्स हो गया यात्रा का. तो जो ये स्कीम्स हमने पढ़ा, एक बार रिविजिट कर लेते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को. इट्स अ पीएम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. तो कौन है फ्लैगशिप इनिशिएटिव? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ठीक है, ये दिमाग में रखना है. और क्या करता है ये? इट प्रोवाइड्स क्लीन कुकिंग फ्यूल. क्या करता है? क्लीन कुकिंग फ्यूल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी टू impoverished एंड रूरल हाउसहोल्ड that previously relied on firewood, coal, cow dung cakes and other traditional fuels. Kind of, अगर आप पूछो तो कोल का मात्रा कम होगा इन यूज, और इट्स गुड फॉर एज अ environment friendly initiative. Traditional cooking fuels had negative effect on both environment and the health of rural women. What is the goal? Preserving women's health and empowering them. क्योंकि अगर आप देखिएगा तो आज भी गांव में जो खाना बनाने का प्रक्रिया है और ये सब है, वो वुमन के द्वारा, इट इज़ अ वुमन लेड थिंग. आई एम नॉट ट्राइंग टू बी समथिंग एंटी वुमन, बट इट्स अ रियलिटी. और which have a very negative impact on the woman's health, क्योंकि उसका जो धुआं होता है उसमें बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड और ऐसे ऐसे गैसेस होते हैं which affects lot to the woman since they are preparing the food. It also lowers the amount of people who die in India using dirty cooking fuel. See, avoiding a large number of acute respiratory diseases. Acute मतलब लगातार, मतलब long term thing in young children that are brought on by indoor air pollution from burning fossil fuels. ये इसका goals है. Features क्या है? Schemes gives BPL household, BPL मतलब below poverty line, फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ रुपीज 1600 फॉर ईच एलपीजी कनेक्शन. मतलब आप ले लो, फिर यू विल बी रीइंबर्स्ड बाय द गवर्नमेंट. एक सर्टन आई थिंक साल में एक सर्टन लेवल है, उतना ही तक आपको मिलेगा. द बेनिफिशियरीज ऑफ उज्ज्वला 2 विल रिसीव अ हॉट प्लेट एंड द फर्स्ट रिफिल एट नो कॉस्ट इन एडिशन टू एन एलपीजी कनेक्शन विदाउट अ डिपॉजिट. तो ये किसका फीचर हो गया. आयुष्मान भारत क्या है? तो इट बिगन इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 रिकमेंडेशन इन ऑर्डर टू रियलाइज द गोल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. मतलब सबका हेल्थ कवर्ड हो, कि अगर कोई जा रहा है हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा पैसा उसका नहीं लग रहा है. दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. This program has been structured to meet the SDGs, that is Sustainable Development Goals, and the core tenet, leave no one behind. SDG का पार्ट रहा है ये. SDG का जो बहुत सारे हमारे 17 SDGs हैं, उनमें कई सारे मुद्दे उठाए गए हैं, उनका ये एक पार्ट है. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि इम्प्लीमेंट ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोग्राम्स at the primary, secondary and tertiary level that addresses health holistically, encompassing ambulatory care, promotion and prevention. Basically prevention is the main goal. However, बहुत सारी इसकी अलग अलग benefits भी हैं. Comprises the ongoing federally funded program known as राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना and senior citizen health insurance scheme. ठीक है, तो ये क्या करता है? 1 सेकेंड. ये क्या करता है? ये ऑनगोइंग जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स है उसको फंड भी करता है. दिस प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रोग्राम. मेथड क्या है? तो इट इज द कंटिन्यूम ऑफ केयर मॉडल दैट कंसिस्ट ऑफ 2 इंटरकनेक्टेड पार्ट्स, वेलनेस सेंटर्स एंड हेल्थ सेंटर्स एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. ठीक है, तो ये दो मतलब एज अ केयर मॉडल प्रोवाइड करता है बिटवीन द 2 interconnected programs. The crucial element of Pradhan Mantri this is PM Ayushman Bharat is
insurance and assurance program in the world, fully funded by the government. It offers coverage of secondary and tertiary care hospitalization in India's public and private hospitals up to 5 lakh per family annually. 5 lakhs per family. It is important. Cover approximately 50 crore beneficiary or over 10.74 crore impoverished and vulnerable families qualified for these benefits, and give recipient cashless access to medical services at the point of service. So this is the major function, this is the major element of the Pradhan Mantri Ayushman Bharat. So we are done with the topic. Let's go with the Aditya L1. Aditya L1's confident orbit insertion. So why it was in the news? So Aditya L1, India's solar observatory, reached its destination into a halo orbit around Sun Earth Lagrange point L1. तो halo orbits क्या है? It's a three-dimensional periodic orbits around this Lagrange point in a two body system like Earth Sun or Earth Moon. It is commonly linked with L1, L2 and L3, which are known as this Lagrange point. कहाँ गया? हाँ, Lagrange points. ठीक है? Lagrange points. What is the function? So it is it is such points वहाँ जहाँ पे जो two big bodies हैं, that is Earth and Sun, इनका जो this centrifugal force जो है, they balance each other. ठीक है? If you talk about this, तो if you suppose this is the Lagrange point L1, L2 and L3, they balance each other. जो उनका centrifugal force है, ठीक है? ये provide करता है एक stable line of sight to Earth and Sun. If you see, it's a stable line of sight to Earth and Sun, beneficial for continuous communication and solar power. ठीक है? मतलब ये energy efficient भी रहता है because it balance ग्रेविटेशनल फोर्सेस रिक्वायरिंग मिनिमम प्रोपल्शन फॉर ऑर्बिट मेंटेनेंस. मतलब मिनिमल प्रोपल्शन से क्या होगा? मिनिमम फ्यूल कॉस्ट. ठीक है? तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द लैग्रेंज पॉइंट. तो उसमें हमारा आदित्य L1 जो है वो पहुंच चुका है. आदित्य पॉइंट लैग्रेंज पॉइंट L1 launched on September 2 into 2023. It has covered a distance of 1.5 million kilometer. So if you see, तो ये अर्थ है. एक सेकेंड. इफ यू सी, दिस इज अर्थ. ठीक है? वहां से ये कहाँ आया है? यहाँ L1. सो दिस इज अ लैग्रेंज पॉइंट. ठीक है? दिस इज अ लैग्रेंज पॉइंट. अब यहां से हाउ आई टॉक कि द डिस्टेंस बिटवीन लाइक जो उनके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होंगे बिटवीन द अर्थ एंड हियर मे बी हियर इधर सन का, दे विल बैलेंस ईच अदर. ठीक है? तो इसके कारण क्या होगा कि इट विल हैव अ सच अ मतलब दिस ट्रेजेक्ट्री जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोपल्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो अर्थ और सन का जो व्यू पॉइंट है वो बिल्कुल सेम हो गया. सो इफ़ यू सी हाउ इट गॉट ऑब्जर्व, तो इट टुक ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हुए अर्थ सेंटर ऑर्बिट ट्रांसफर टू अर्थ. मतलब इसका ट्रेजेक्ट्री रहा है, ये क्रूज फेज रहा है. एक बेसिक आइडिया ले लीजिए कि हेलो ऑर्बिट का किस तरीके से, हेलो ऑर्बिट क्या होता है, किस तरीके से लैग्रेंज पॉइंट में घुसा है. तो दिस इज हाउ इट हैज गॉन. ठीक है? ये L1 का ट्रेजेक्ट्री टू L1. ठीक है? दिस इज बेसिक अबाउट आदित्य L1. तो आदित्य L1 सबसे पहले ये PSLV XL, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL का इसमें दिस रॉकेट नेम. ठीक है? और सतीश धवन स्पेस सेंटर विच इज इन श्रीहरिकोटा, वहां से ये लॉन्च हुआ है. इट एम्स टू एस्टैब्लिश अ सोलर ऑब्जर्वेटरी इन हेलो ऑर्बिट अराउंड द L1 लैग्रेंजियन पॉइंट. ठीक है? इसका ये ऑब्जेक्टिव है. ठीक है? इट हैज 12 थ्रस्टर्स फॉर द फाइनल मनूवर विथ पीरियोडिक ऑर्बिट मेंटेनेंस प्लान्ड एवरी 45 days. ये इसके कुछ फैक्ट्स हैं. आदित्य L1 हैज फ्यूल एडिक्वेसी फॉर ओवर 5 years. मतलब 5 साल तक उसमें फ्यूल का मात्रा दिया हुआ है.
पेलोड्स फॉर सोलर एग्जामिनेशन, इसमें बहुत सारे पेलोड्स लगे हैं, उनका अलग अलग फंक्शन है। तो सोलर को एग्जाम करना है, मतलब सोलर जो सन को है उसको एग्जामिन करना है। कैरी 7 पेलोड्स फॉर इन डेप्थ सन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। It includes visible and X-ray spectrometers, a coronagraph, solar wind analyzers, energetic particle detectors and magnetometers. तो ऐसे ऐसे ये नाम है पेलोड्स के, जो कि एनालाइज करेंगे सोलर के दिस एक्सरेज, कोरोना के एटमॉस्फेयर, सोलर विंड को एनालाइज। तो ऐसे इनका बेसिक फंक्शन है। साइंस ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फोकस ऑन एन अंडरस्टैंडिंग कोरोनल हीटिंग एंड सोलर विंड एक्सेलरेशन, इन्वेस्टिगेट इनिशिएशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन, solar flares and near earth space weather, study coupling and dynamics of the solar atmosphere along with solar wind distribution and temperature anisotropy. ये बेसिक साइंटिफिक व्यू पॉइंट है कि इसका टेक्निकली क्या क्या फंक्शन होगा। बेसिकली आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है सो दैट यू कैन हैव अ बेटर व्यू पॉइंट। यू शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, किस तरीके से हैलो ऑर्बिट में एंटर होते हैं, क्या होता है हैलो ऑर्बिट, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए अबाउट लैग्रेंज पॉइंट्स। तो सी दिस इज अर्थ, दिस इज सन, और यहाँ पे एक ये L1 है विच इज वेयर आदित्य हैज बिन प्लेस्ड, ठीक है। ये हमारा L2 है, ठीक है। हमारा ये L3 है, यहाँ L4 है और ये L5 है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि मतलब लैग्रेंज पॉइंट्स होता क्या है, ठीक है। तो लैग्रेंज पॉइंट रिप्रेजेंट लोकेशंस इन स्पेस वेयर ऑब्जेक्ट once position exhibit a tendency to remain stationary। ये लैग्रेंज पॉइंट का क्या काम है कि यहां पे ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रह सकते हैं। इट्स द फंडामेंटल थिंग, ठीक है। These points occur when the gravitational forces exerted by two significant masses precisely balance the centripetal force necessary for a small object to co-move with them। और जो अपना सेंट्रीपीटल फोर्स होता है विच इज दिस सेंट्रीपीटल फोर्स, इसका काम क्या होता है? व्हाट इज सेंट्रीपीटल फोर्स? इट इज अ नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू कीप इट मूविंग along a along a circular path, ठीक है। इट्स अ नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन an object to keep it moving along a circular path, that is your centripetal force। तो आई थिंक एक एवरेज आइडिया मिल गया होगा आपको कि लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, आदित्य L1 का फंक्शन क्या है, उसमें कई सारे पेलोड्स हैं। यू हैव टू हैव अ बेसिक आइडिया सो दैट उसमें अगर क्वेश्चन आता है यूपीएससी के द्वारा तो यू आर एबल टू डू दैट पेयरिंग थिंग। ओके, तो 5 पोजिशन इन स्पेस वेयर ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ टू लार्ज बॉडीज लाइक अर्थ एंड सन क्रिएट स्टेबल पॉइंट्स L1 to L5। L1 commonly used for solar observation like आदित्य L1। L1 का क्या फंक्शन है? बेसिकली सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए यूज करते हैं। L2 क्या करते हैं? L2 यहाँ पे है, अरे सॉरी, L2 यहाँ पे है हमारा। इट इज यूज फॉर टेलीस्कोप्स एंड ऑब्जर्वेटरीज, टेलीस्कोप्स एंड ऑब्जर्वेटरीज, ठीक है। L3, L4 and L5, that is this and this and this, they are commonly used for equilateral triangles with the large bodies providing stable regions for satellite placement। यहाँ पे सैटेलाइट का प्लेसमेंट्स होता है बिकॉज इट्स स्टेबल, यहाँ पे आराम से घूम सकते हैं। सो बेसिक ये एक
आइडिया L1, L2, L3, L4 एंड L5 के बारे में. आई होप इट इज क्लियर. लेट्स टॉक फर्दर regarding National Sports Award 2023. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड कौन कौन सा पार्ट होता है. तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो दिस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इट इज द हाईएस्ट ऑनर इन स्पोर्ट्स. इट इज रिप्लेस्ड बाय द नेम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. ठीक है. दूसरा है अर्जुना अवार्ड्स. रिसेंटली मोहम्मद शामी एंड ऑल पीपल हैव गॉट दिस अर्जुना अवार्ड. द्रोणाचार्य अवार्ड टू कोचेज एंड ऑल दैट. ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी. ठीक है. तो न्यूज़ क्या है भाई. तो न्यूज़ है मतलब नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड एट राष्ट्रपति भवन बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन द नेशन, द मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड विल बी गिवन टू बैडमिंटन प्लेयर्स सत्विक साईराज, रानिक रेड्डी एंड चिराग एस शेट्टी. जो दो मतलब हाईएस्ट मेजर ध्यानचंद अवार्ड है वो दो लोग को मिलेगा. सतीक साईराज, एक सेकेंड, सतीक साईराज, रानिक रेड्डी एंड चिराग एस शेट्टी, बोथ आर बैडमिंटन प्लेयर्स. ठीक है. इनको मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड विच इज द हाईएस्ट अवार्ड. जो अर्जुना अवार्ड है वो 26 athletes and the द्रोणाचार्य awards will be given to 8 coaches. मतलब ये जो मिलेगा ये 26 लोगों को मिलेगा और ये मिलेगा 8 कोचेस को. 8 है ना. हाँ, 8 कोचेस. द recipients of the ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर विनीत कुमार शर्मा फॉर हॉकी, कविता सेल्वराज फॉर कबड्डी एंड मंजूषा कन्वर फॉर बैडमिंटन. ओके. तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स है. फिर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार विल बी अवॉर्डेड टू ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु. ये दो लोग को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिलेगा. नाम डाल सकता था अर्जुना अवार्ड्स के अवार्डीज का और द्रोणाचार्य, बट इट इज़ टू मच. यू जस्ट हैव टू हैव अ बेसिक आइडिया कि इन अवार्ड्स का काम क्या है. अगर कोई बहुत फेमस है तो उसको किस स्टेट पीसीएस में पीएससीज में पूछ लेते हैं कि क्या कहते हैं ये अवार्डी कौन है. फेमस लोग के जनरली पूछ लेते हैं वो लोग. सो आई हैव अ बेसिक आइडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट ऑनर किसको दिया है. तो सत्विक साईराज, रानिक रेड्डी एंड चिराग एस शेट्टी, जिनको इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, हु आर बैडमिंटन प्लेयर्स. ये याद रखना है. अबाउट द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, तो highest athletic honors in India are known as national sports honors, which are a set of 6 individual honors given to player, coaches, organization in recognition of their achievements and contribution to the growth of Indian sports. The Major Dhyanchand Khel Ratna Award is the highest sporting honor in the country. The contribution of sport is recognized by the Ministry of Youth Affairs and Sports, and the awards are presented by the President every year. ठीक है. और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट इसको कलेक्ट करती है एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड यू नो उसको पास ऑन, उसको रिकॉग्नाइज करके पास ऑन किया जाता है टू द प्रेसिडेंट हाउस एंड अ डे इज एलोकेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइजेस. व्हाट इज द अवार्ड्स, क्यों दिया जाता है. तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड is India's highest sporting award. It was put into effect in 91-92. ठीक है. The recipient are recognized for the exceptional achievement in sports over a 4-year period at the international level. ये यहाँ पे कैच है. 4-year period और in international in the international forum. ठीक है. 4-year period. Dronacharya Awards were established in 1985 to recognize and thank distinguished coaches who have produced medal winners at esteemed international sporting events. ठीक है. अर्जुना अवार्ड्स ये established हुआ है 1961 में सबसे पुराना. एथलीट मस्ट exhibit leadership, sportsmanship and discipline in addition to
strong performance at the international level during the preceding 4 years. ठीक है, in order to be eligible for the award. Dhyan Chand Award was established in 2002. It is a lifetime achievement award in sports. तो अर्जुना और मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 4 साल, ये 4 years कैच है यहाँ पे। उसके बाद द यूनिवर्सिटी रिसीव्स द मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। यूनिवर्सिटीज क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी कहाँ जाता है? यूनिवर्सिटीज, ठीक है, इन इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन ड्यूरिंग द प्रीवियस अकेडमिक ईयर। प्रीवियस अकेडमिक ईयर मतलब पिछले साल में क्या, जो किसने जीता, क्या हुआ, उसके लिए जो रिकॉग्निशन है एट द यूनिवर्सिटी लेवल फॉर द प्री अकेडमिक ईयर इज मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इज गिवन टू ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स, मतलब ग्रुप्स को भी मिल सकता है और इंडिविजुअल्स को भी मिल सकता है, फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 years। खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 3 years। ओके। The Tenzing Norgay National Adventure Award is given to honor exceptional accomplishment in sports or adventure activities on land, sea or on the air। तो ये पूरा स्पोर्ट्स का डिटेल्स कि किस तरीके से क्या है, क्या किसमें कितने साल का पीरियड चाहिए, इंटरनेशनल चाहिए, नेशनल चाहिए, और यूनिवर्सिटीज़ का है कि ग्रुप का है, यू हैव टू हैव, क्योंकि यूपीएससी में लास्ट ईयर 2023 में देर वॉज अ क्वेश्चन एंड दे हैव टू मैच द फॉलोइंग पेयर्स को मैच करना था। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय स्पोर्ट पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 4 years। अर्जुना अवार्ड तो फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय, तो गलत ही है। द्रोणाचार्य अवार्ड टू ऑनर एमिनेंट कोचेस। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार टू रिकॉग्नाइज मेड बाय स्पोर्ट, आई थिंक ये गलत है। तो इसमें कौन कौन से सही है? आई थिंक ओनली 2 होना चाहिए। हाउएवर जस्ट चेक इट वंस, आई जस्ट वांटेड यू टू हैव एन आइडिया कि किस तरीके से यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन कर दिए जाते हैं, ठीक है। सो बिफोर ending the this lecture, if you need any mentorship program, do call in this on this number। सर का नाम है चंद्रशेखर, and I want to thank him personally for giving me this opportunity, giving me this platform to teach, to bring out the best in me। And if you have any personal this mentorship requirement, please do call on this number। And if you require anything, any assistance, be it means interview, prelims, और किसी भी सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हो, डू कॉल इन दिस नंबर। यू विल बी गिवन अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, you will be asked every day, you will be talked every day for your daily performance and all that। Have a word with him, and that's all for today। So a big thank you and have a good day।